Good morning, dear students. Welcome back to the online classes of Saint Xavier School, Bansur. So, this video is for 9th standard students of mathematics. Previously, we have started our exercise 1.3 and solved all the questions except one, that was question number 7th. So, question number 7th of 1.3, that is, write three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Means we have to write three numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring. मीन्स इरेशनल नंबर्स होंगे और डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी. जैसे मैं ऐसे लिखूं 0.10, 100, 100. इन दिस चेक वेदर द डिजिट्स आर रिपीटिंग और नॉट. पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आ रहा है. फिर यदि 1 आता, 0 आता तो डिजिट रिपीट होती. इसमें ऐसा नहीं आ रहा, मीन्स डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, वी कैन राइट 0.21, 211, 211. Any example we can write. Third example, I can write 1.32, 322, 333. Whatever. Means digits are not repeating. Digits are not in a proper sequence. So here decimal expansion is non-terminating, non-recurring. Or at the place of recurring we can use the word repeating. So this one question was remaining only. Now we have completed exercise 1.3. Now 1.4 also we have completed in our previous lecture. Now let's move to exercise 1.5. So the question number first of 1.5 exercise is classify the following numbers as rational or irrational. Some numbers are given to us. We have to classify these numbers as rational or irrational. First is 2 minus root 5. As we know that this 2 is rational and this 5 is irrational. So we are unable to subtract or we are unable to solve out these numbers. And addition of rational, जैसे rational में rational को add करेंगे, then only rational number will come. If we are adding rational to irrational, then irrational number will come. And if we are subtracting rational minus irrational, then also irrational number will come. So this 2 minus root 5 is irrational. Its second part, that is 3 plus root 23 minus root 23. So while removing this bracket, इस bracket को अपन remove करें तो आएगा 3 plus root 23 minus root 23. root 23 to root 23 cancel हुआ, 3 बचा, and we know very well this 3 is rational number. Next, its third part, 2 root 7 upon 7 root 7. रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2/7. और ये p/q वाली फॉर्म में है तो कौन सा है, रेशनल नंबर. नेक्स्ट 1/√2. सेम हेयर, जैसे ऐड किया वैसे मल्टीप्लाई हो, नोट जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, एंड दैट 2 विल बी रेशनल नंबर. हेयर 1/√2, 1 इज रेशनल एंड √2 इज इरेशनल. या इसको कंपेयर करें अपन p/q वाली फॉर्म से, ये p ये q. p is integer but q is not integer. √2 never comes on, √2 will never come on number line.
So its decimal expansion will be non-terminating, non-recurring, and this number will be irrational number. Next is 2 pi. Fifth part, 2 pi. As we know that pi is an irrational number, so 2 pi, 3 pi, 5 pi, whatever we are getting, these all numbers will be irrational numbers. So this was the question number first of exercise 1.5. Now question number second. In second we have to simplify. 4 parts are given to us. First part, that 3 plus root 3 and 2 plus root 2. We have to multiply this. We have to simplify by multiplying this bracket to this bracket. Now how to multiply? So first of all, इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट नंबर है 3, इसको अपन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा? ये 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2, फिर इसके बाद जो बचा हुआ है प्लस का रूट 3, इसको अपन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 2. 8th क्लास में सीखा बेटा एक्सरसाइज सेकंड के अंदर कि हाँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. नॉट इन सेकंड, माइट बी 9th एंड 10th एक्सरसाइज, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. अब ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. पूरे ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई होगा? पहले 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 3 मल्टीप्लाई रूट 2, प्लस रूट 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 मल्टीप्लाई 2, एंड फाइनली दिस रूट 3 विल मल्टीप्लाई बाय रूट 2 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2. Now 3 2 ja 6. When 3 multiply by root 2, then 3 root 2. And when root 3 multiply by 2, then 2 root 3. And when we multiply root 3 by root 2, then these both numbers are with square root. Then we will put this sign square root and 3 2 ja 6. So this is our answer. Its second part. In the second part we have 3 plus root 3 and 3 minus root 3. Now by looking at this, simply we can observe that this is in the form of a plus b and a minus b. So we will have a square minus b square. अपना जो क्वेश्चन है वो इस वाली फॉर्म में गिवन है, अपने को ये वाली फॉर्म बनानी है. तो एट द प्लेस ऑफ a what we have 3 and at the place of b what we have root 3. इसमें रख दें अपन, a की जगह रखा 3, then 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह रखा रूट 3, देन रूट 3 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर हुआ 9 माइनस रूट 3 स्क्वायर 3 and 9 minus 3 6. This is our answer. Next is its third part. Third part is root 5 plus root 2 and its होल स्क्वायर. अब इसको देखें अपन, ये इस वाली फॉर्म में है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. एट द प्लेस ऑफ a वी हैव रूट 5 एंड एट द प्लेस ऑफ b वी हैव रूट 2. इसमें रखें अपन a की जगह क्या रखें? रूट 5 एंड रूट 5 का स्क्वायर. b की जगह क्या रखें? रूट 2 देन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई a कितना है? रूट 5 मल्टीप्लाई b कितना है? रूट 2. रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5. स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बचा. इसमें भी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बचा. अब ये 2 और रूट 5 को रूट 2 से करेंगे तो एक सिंबल आएगा रूट का और 5 टू कितना हो जाएगा? 10. सेम हेयर अपन ने किया था, रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था तो रूट 6 आया था. नाउ 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10. अभी मिस्टेक क्या होती है, अपन 7 में 2 को और ऐड करते हैं. 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 रूट 10. बट ये गलत है.
अपना आंसर यही है, अपन इसको आगे और सोल्व नहीं कर सकते। सो ओनली दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट, इट्स फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या है? √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। अब सिंपली इसको देखें अपन फिर से वो फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a² माइनस b² वाला इस फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है ये। तो अपन इसमें क्या करें, a की जगह क्या रख दें? √5, a की जगह √5 का स्क्वायर लिखा, माइनस b की जगह √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 5 बचा, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बचा, और कितना आया लास्ट में? 3। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कैसे करें? थर्ड एंड फोर्थ वी विल डू in our next lecture. In this we will just do complete this fifth, rationalize the denominators of the following. rationalize करना बेटा it is very important topic and जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे तब तक काम आएगा तुम्हारे। अब जैसे 1/√7 को रेशनलाइज करना है, अपन राइट करेंगे बाय रेशनलाइजिंग। जब रेशनलाइज करते हैं तो अब जिसको रेशनलाइज करना है वो तो एज इट इज अपने पास रहता है। अब यदि इसमें केवल एक ही नंबर है, केवल एक ही नंबर है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, √7 को 1 से किया तो √7 एंड √7 को √7 से करेंगे तो जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 2 आता है, वैसे √7 को √7 से करेंगे तो 7 आएगा। दिस इज आवर आंसर। सपोज 1/√2 को रेशनलाइज करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। यदि केवल एक को कर देंगे तो गलत होना निश्चित है। √2 को 1 से किया, √2 आया, इधर √2 को √2 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ओनली। रेशनलाइज का यूज क्या है कि जो अपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है उसको अपन रिमूव करते हैं रेशनलाइज करके। क्या है, जो अपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा होता है अपन रेशनलाइज प्रोसेस द्वारा उस स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं। देखो इस नंबर में नीचे √7 था तो इसका रूट रिमूव कर दिया अपन ने, 7 आ गया। हेयर इसमें √2 था, इसका रूट रिमूव कर दिया, नीचे 2 आ गया अपने पास में। अब ये तो थे क्वेश्चंस जिनमें केवल डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो। अब जैसे 2 नंबर आ जाएं डिनोमिनेटर में अपने पास तो क्या करेंगे अपन, जैसे ये आ गया, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था 1/√7 माइनस √6। क्या होगा इसमें, we have 2 numbers in our denominator, we will write this by rationalizing। क्या करेंगे अपन, इस नंबर को सेम एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे, √7 माइनस √6। अब इसको मल्टीप्लाई करें अपन, सेम मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी करेंगे, न्यूमरेटर को भी करेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को भी करेंगे। कैसे करें, अपना जो नंबर है वो सेम नंबर होगा, बस उसका साइन जो दोनों नंबर्स के बीच में साइन लगा हुआ है उस साइन को अपन अपोजिट कर देंगे। इधर माइनस है तो अपन यही नंबर, सेम नंबर ऐसे कि ऐसे एज इट इज यहाँ लिखेंगे अपन, बस ये साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस होता है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ √7 प्लस √6 और नीचे भी सेम √7 प्लस √6। √7 माइनस √6 था नीचे, रेशनलाइज कर रहे हैं अपन तो सेम नंबर विद अपोजिट साइन, √7 का √7, √6 का √6, बीच में माइनस है तो प्लस कर दिया और यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर देते हैं अपन, बस ये डिफरेंस है। और जहाँ देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया √7 प्लस √6। नीचे क्या है, √7
माइनस रूट 6 ये, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे √7 प्लस √6 से। अब ध्यान रखना, जहां नीचे दो नंबर अपने पास में, इफ वी हैव टू नंबर्स इन आवर डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज करने के बाद हमेशा नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला अपने पास बनेगा। क्लियरली वी कैन सी हेयर, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाली फॉर्म में है। क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला तो एज इट इज, उसके साथ कुछ नहीं करना, √7 प्लस √6। नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। कभी कभी क्या होता है बच्चे, इसको सोल्व करने के चक्कर में ऊपर वाला पार्ट लिखना ही भूल जाते हैं। तो ये तो पहले राइट करना है, अपना न्यूमरेटर है ये, तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो अपना ये वाला पार्ट इस वाली फॉर्म में है, अपने को ये वाली फॉर्म बनानी है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें a स्क्वायर a की जगह रख दें अपन कितना, √7 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर b की जगह कितना है, √6 और इसका स्क्वायर। अब देखो, अप साइड एज इट इज √7 प्लस √6 एंड डाउन साइड √7 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल 7 आया। ऐसे ही √6 का स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल 6 आया। फाइनली क्या बचा, √7 प्लस √6 अपॉन 1। अब इस अपॉन 1 को लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन ए प्रॉपर वे। इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है अपने पास, 1/√5 प्लस √2। अब प्रोसीजर ये रहेगा कंप्लीटली, मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे के सोल्व करके बता देता हूँ। रेशनलाइज करते टाइम अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेम नंबर विद अपोजिट साइन, तो √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2। अब साइड तो ये आ ही जाएगा √5 माइनस √2 एंड डाउन साइड जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइड तो √5 माइनस √2 एज इट इज एंड डाउन साइड √5 का स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 5 माइनस इधर स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 एंड 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3। तो आंसर क्या हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये अपना आंसर आया। सेम ऐसे ही इसका फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें 1/√7 माइनस 2 है। तो सेम रेशनलाइज करेंगे अपन और आंसर अपना आ जाएगा। सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.5। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट यू हैव टू सोल्व all the questions which I am telling you in our online classes. So thank you and have a very good day ahead.